Okay students, welcome back. Here we start with session 5 and we'll continue our discussion on demand forecasting. These are the different topics that would be covered today. As we discussed in the last session, that if we are talking about the types of forecasts based on the technique or the methodology used, then forecasting is of two main types: qualitative methods and quantitative methods. So today we'll talk about the quantitative methods. In quantitative methods, we discussed in the last session that there are two main techniques. One are called causal methods, the other are called time series techniques. Now, causal methods, the quantitative forecasting methods, are also popularly called econometric methods because they make use of some economic based studies, and they are also called explanatory methods because they explain that there is a reason because or there are some factors which have caused the past sales of the product and will continue to make its future demand. So what are causal methods? Causal methods are forecasting methods where it is assumed, it is believed with reason that the future demand of any product of our organization will be because there are certain reasons, there are certain factors which have in the past caused its sales. तो कॉजल मेथड ये कहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की जिसकी डिमांड की फोरकास्टिंग हम फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, उसकी डिमांड फ्यूचर में इसलिए होगी क्योंकि पास्ट में भी उसकी सेल्स इसलिए होती आई है क्योंकि कुछ फैक्टर्स थे, कुछ रीजंस थे जिन्होंने उसकी सेल्स करवाई. So we believe that there is a cause and effect relationship. Effect is the sales, effect is the future demand, and this effect is because of some causes, because of some factors which have caused the past sales of the product. So what is the dependent variable in this? So there are two variables, one dependent variable, the other independent variable. Dependent variable क्या है? हमारी sales या हमारे प्रोडक्ट की फ्यूचर डिमांड जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं कि भाई वो डिपेंडेंट रहा है कुछ फैक्टर्स पे. एंड व्हाट इज द अदर थिंग? द अदर इज सम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स व्हिच हैव कॉज्ड द सेल्स, और इन अदर वर्ड्स व्हिच विल कॉज द फ्यूचर डिमांड ऑफ आवर प्रोडक्ट. तो हमें ये रिलेशनशिप ढूंढना है. सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कैन बी फैक्टर्स which affect the demand of the product, which have caused the sales of the product in the past, and we believe that these factors will continue to be there and they'll continue to make demand of our product in the future also. And these factors can be anything. They can be the amount of money which the company has spent on advertisements of its products. It can be other economic conditions in the country or in the neighboring countries. It can be the population of the region. It can be the purchasing power of the region, etc. etc. Here I have given an example कि अगर कोई कंपनी है जो सीमेंट बनाती है और वो देखना चाह रही है कि आने वाले समय में मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी रहेगी, तो भाई आप पास्ट सेल्स देखो पहले आपके प्रोडक्ट की कितनी रही है, और आप देखो कि पास्ट सेल्स के साथ कौन से फैक्टर्स रहे हैं जिसने सीमेंट की सेल करवाई होगी. तो जिस तरह से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ग्रो की है आपने देखा, उसी तरह से मेरे भी प्रोडक्ट की सेल्स ग्रो की है. तो देयर इज अ रिलेशनशिप. तो आप ऐसे सारे फैक्टर्स ढूंढोगे और उन पर डेटा कलेक्ट करोगे जो आपके प्रोडक्ट की पास्ट सेल्स करवाता रहा है, और फिर हम क्या करते हैं कि एक मैथमेटिकल मॉडल डेवलप कर लेते हैं बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल, that is the past sales of the product, and the independent variable or the independent variables. और फिर इस मैथमेटिकल मॉडल में आने वाले समय में जिसमें हमारा इंटरेस्ट है कि भाई 3 महीने बाद बताओ हमारे प्रोडक्ट की
सेल्स कितनी होगी, हमारे प्रोडक्ट की फ्यूचर डिमांड कितनी होगी। तो भाई 3 महीने बाद आप बताओ कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल या वेरिएबल्स की वैल्यू क्या होगी। पुट इन द मॉडल दैट यू हैव डेवलप्ड, आपको डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज फ्यूचर डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट मिल जाएगा। सो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ दीज मेथड्स? रिग्रेशन एनालिसिस मेथड इज देयर, इकोनोमेट्रिक मॉडल मेथड इज देयर। आई विल डिस्कस विद यू व्हाट इज दिस regression analysis method or what is also called the method of least squares. Okay, then quantitative forecasting techniques में पहला मेथड हमने देखा कॉजल मेथड है, दूसरा मेथड है बच्चों टाइम सीरीज मेथड, इसको हम एक्स्ट्रापोलेटिव मेथड भी कहते हैं। व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस मेथड, व्हाट इज द अंडरलाइन प्रिंसिपल? ये मेथड ये मानता है कि जिस प्रोडक्ट की फ्यूचर सेल्स, फ्यूचर डिमांड आप फोरकास्ट करने वाले हो, उसकी जो पास्ट सेल्स हुई है, अगर आप उसकी पास्ट सेल्स को ध्यान से इन्वेस्टिगेट करो, जैसे सपोज करो आप फ्यूचर सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स पता करना चाह रहे हैं कि 2 महीने बाद कितना होगा, तो आप क्या करिए, इस प्रोडक्ट की जो पिछले महीनों में सेल्स हुई है उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रख दो। सेल्स नंबर को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रख दिया, अब उसको आप इन्वेस्टिगेट करो। आप जब इन्वेस्टिगेट करेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, अगर आपने पास्ट सेल्स को रख दिया, उसको कहते हैं टाइम सीरीज। तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि यार उस सेल्स में एक कैरेक्टरिस्टिक सा पैटर्न छुपा बैठा है। उस कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न को हमने ढूंढ लेना है और एक मैथमेटिकल फॉर्मूला या मॉडल बना देना है जो उस कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न को फ्यूचर में एक्सट्रापोलेट कर दे। तो दिस इज टाइम सीरीज मेथड। सो टाइम सीरीज मेथड में भी कुछ मेथड्स हैं लाइक सिंपल मूविंग एवरेजेस, वेटेड मूविंग एवरेजेस, सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, ट्रेंड एडजस्टेड एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, सीजनल मेथड, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो वी विल डिस्कस सम ऑफ देम। Next students, we come to a different type of classification of forecasting techniques that can be done, and this is on the basis of time horizon. क्या मतलब कि आप जो फोरकास्टिंग किसी चीज की करने लगे हो, फ्यूचर के कितने समय के लिए करने लगे हो। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि सर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्ट ए है, मैं देखना चाहता हूं कि आज से 4 महीने बाद इसकी डिमांड मार्केट में क्या होगी। लेकिन दूसरे समय पर आप कहते हो कि नहीं सर, इस प्रोडक्ट ए की डिमांड मार्केट में आज से 2 साल बाद कितनी होगी, मैं ये देखना चाहता हूं। लेकिन एक बार आप कहते हो कि सर इस प्रोडक्ट ए की डिमांड मार्केट में आज से 2 हफ्ते बाद कितनी होगी। तो ये जो तीनों केसेस हैं, इनमें क्या बदल गया है बच्चों? टाइम होराइजन। So one of the ways how forecasting can be classified is on the basis of the time horizon, the future period in which your interest lies for obtaining the forecast. And there are 3 main, and please याद करिए कि हम फोरकास्टिंग कर क्यों रहे हैं। फोरकास्टिंग हम कर रहे हैं प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए। प्रोडक्शन प्लानिंग का क्या मतलब है? प्रोडक्शन प्लानिंग का मतलब है कि हमने कुछ डिसीजंस लेने हैं, कुछ एक्टिविटीज करनी है, उसके लिए हमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, वो हमें मिल जाए। सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसपे सब चीजें डिपेंड करती हैं कि आपको फ्यूचर में प्रोडक्शन कितने यूनिट्स के लिए करनी है, वही हम पता कर रहे हैं। डिमांड का पता कर रहे हैं कि फ्यूचर में कितनी डिमांड होगी, क्योंकि सभी चीजें फिर वो मेन इनपुट है जो सब चीजें डिसाइड करवाएगा। लेकिन जो आपने डिसीजंस लेने हैं इस फोरकास्टिंग नंबर से, वो डिसीजंस तो अलग अलग तरह के हो सकते हैं। एक डिसीजन हो सकता है कि भाई आपने ये पता करना है कि अगले हफ्ते आपको कौन से प्रोडक्ट की कितने यूनिट्स पे प्रोडक्शन करनी है। लेकिन एक डिसीजन ये भी हो सकता है कि यार मुझे आज से 4 महीने बाद के लिए एडिशनल मैन पावर की जरूरत तो नहीं होगी। आपको ये भी डिसीजन लेना हो सकता है कि भाई आज से 3 साल बाद मुझे कहीं इससे बड़े प्लांट की किसी नए लोकेशन पे जरूरत तो नहीं पड़ेगी। और ये जो डिसीजंस हैं ये अलग अलग समय के हैं। जो आप कह रहे हो कि अगले हफ्ते मुझे कितनी प्रोडक्शन करनी है, आपको अगले हफ्ते का फोरकास्ट नंबर चाहिए। जो आप कह रहे हो कि 4 महीने बाद एडिशनल मैन पावर तो नहीं चाहिए होगी, वो आपको पता आज ही करना है, लेकिन वो डिसीजन आपका 6 महीने बाद का है। नया प्लांट तो नहीं कहीं नई लोकेशन पे खोलना, ये डिसीजन आपका 2 साल बाद तक का है, लेकिन पता आपको आज ही करना है। तो डिसीजन टाइम्स अलग हैं, इसलिए फोरकास्टिंग भी आपको आज ही बैठे अलग अलग समयों के लिए, अलग अलग टाइम होराइजन्स के लिए करनी पड़ती है। लास्ट में हमने एक एग्जांपल दी है कि एक डिसीजन है जो 3 महीने बाद किया, आज फोरकास्टिंग नंबर
का पता कर 3 महीने बाद का कोई हमने डिसीजन लेना है और आप फोरकास्टिंग कर रहे हो जो आपको 1 महीने बाद के हालात बता रही है, कोई फायदा नहीं. सो इट मस्ट मैच. The decision time and the forecasting time horizon must match. Then only you can do effective production planning. So students, there are 3 main types of forecasts. One are called short range, the other are called medium range, the third are called large range forecasts.